Hello students, today we are going to discuss extra problem based on maxima and minima. Problem number 1. A window is in the form of rectangle surmounted by a semicircle opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole opening. So first let width of rectangle be x. So this side also x, and let radius of semicircle be r. Then this is also r. So length of rectangle is 2r. And semi perimeter of circle pi r. अब now write according to problem. Total perimeter is 10 meter. Total perimeter means x plus x plus 2r plus pi r is equal to 10. Now find value of one of the variable from this equation. So 2x is equal to 10 minus 2r minus pi r, and x is equal to 10 minus 2r minus pi r upon 2. Give equation number 1. Now question is find the dimension of the window, means value of r and x, to admit maximum light through the whole opening. मैक्सिमम लाइन मीन्स हमको मैक्सिमम एरिया के लिए क्वेश्चन सोल्व करना है. सो लेट एरिया ऑफ विंडो बी a. So therefore a is equal to area of rectangle means length into breadth means x into 2r. So 2xr plus area of semicircle. Area of circle pi r square और area of semicircle half pi r square. अब now substitute value of x. So 2r, or in place of x write 10 minus 2r minus pi r upon 2 plus half pi r square. अब now cancel, 2 and 2 cancel. अब now multiply r inside. So we get 10r minus 2r square minus pi r square plus half pi r square. अब next step 10r minus 2r square, 10r minus 2r square, और ये माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर. तो 10r माइनस 2r स्क्वायर, 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर.
This is value of A. Now solve this question for maxima or minima. So therefore dA upon dr is equal to 10 minus 4r, 2 आगे आ जाएगा तो 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 पाई 2r, 2 and 2 cancel. Again differentiate. So d square A upon dr square is equal to differentiation of tan 0 minus 4 minus pi. अब there is no r in right hand side. So for every r, d square A upon dr square is negative. यानी हम r के लिए कुछ भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. अब फॉर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा put dA upon dr equal to 0. अब डी अपॉन डी आर को 0 के इक्वल रखते तो क्या मिलेगा आपको, 10 माइनस 4r माइनस पाई आर इक्वल टू 0. अब फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी इससे, आर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर मिलेगा ब्रैकेट में, फर्स्ट सेंड इन राइट हैंड साइड. So 10 equal to r common और we get 4 plus pi implies r is equal to 10 upon pi plus 4. अब since d square a upon dr square 8r is equal to negative, therefore a is maximum at r equal to 10 upon pi by 4. अब हमको डायमेंशन फाइंड करना, मीन्स लेंथ ऑफ विंडो, ब्रेड्थ और रेडियस ऑफ सर्कल. So now putting value of r in equation number 1. किस में रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन 1 क्या है, 10 माइनस 2r माइनस पाई आर अपॉन 2. 10 माइनस 2r माइनस पाई आर. टेन माइनस 2r टेन माइनस 2r माइनस पाई आर अपॉन 2. दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स. इसमें हमको वैल्यू रखनी है आर की. Okay, now 10 as it is, minus 2 in place of r. r के प्लेस पे क्या रखेंगे अपन, 10 अपॉन पाई प्लस 4. 10 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस पाई, और r के प्लेस पे क्या आएगा, 10 अपॉन पाई प्लस 4 और अपॉन 2. तो अपॉन 2 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं 1/2. So equal to 1/2 in bracket this. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन. एलसीएम कितना आएगा, पाई प्लस 4. एलसीएम इज पाई प्लस 4. अब पाई प्लस 4 का इंटू 10 से करें तो क्या आएगा, 10 पाई
प्लस 40 माइनस 20 माइनस 10 पाई। अब कैंसिल कर देते हैं अपन, 10 पाई एंड 10 पाई कैंसिल, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20, और बाहर कितना है 2 है, तो 20 अपॉन 2 यानी 10, so we get 10 upon pi plus 4. So width of window is 10 upon pi plus 4. Radius we already find. Now find only length. So therefore length is equal to 2r. अब 2r means 20 upon pi plus 4. Now next problem. Show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4 upon 3. What is given? Radius of sphere is given. Means this is r and this is also r. और हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड है वो 4r अपॉन 3 है। तो अपन लेट कर लेते हैं, एल्टीट्यूड कितनी h है, लेट कर लेते हैं अपन, एल्टीट्यूड कितनी है h है। अब क्वेश्चन में स्मॉल आर गिवन है तो रेडियस अपन क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर। ओके, नाउ स्टार्ट करो प्रॉब्लम। क्वेश्चन है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ कौन वी वी, तो वी क्या मिलेगा आपको, वी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर यहाँ पे कैपिटल है, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब देर आर टू वेरिएबल आर एंड एच, सो एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, गिव नेम ए बी सी एंड डी। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू कैपिटल आर, बी डी इक्वल टू स्मॉल आर एंड बी सी इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल एच माइनस स्मॉल आर। बी सी इक्वल टू BC इक्वल टू AC माइनस AB। AC मीन्स स्मॉल h और AB मीन्स स्मॉल r। अब सिंस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब नाउ BC स्क्वायर, BC स्क्वायर मीन्स h माइनस r होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, स्मॉल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2HR प्लस CD स्क्वायर, CD मीन्स कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, BD मीन्स स्मॉल r स्क्वायर। अब नाउ कैंसिल if possible, small r square and small r square cancel. Up from this equation find the value of capital R square. So capital R square is equal to 2 into small h into small r minus h square. Give equation number 2 and this is equation number 1. Up from equations 1 and 2, 1/3 pi, in place of r square we can write 2hr minus h square into h. Simplify 1/3 pi 2h square r minus h cube.
अब solve this question for maxima or minima. So therefore dv upon dh is equal to 1 by 3 pi constant. Small r given in the question is constant, so differentiate with respect to h. So h square होगा 2h into 2 4h minus differential of h cube 3h square and d square v upon dh square is equal to 1 by 3 pi constant. तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? डिफरेंशियल ऑफ 4h 4, यहाँ पे r लिखना भूल गया मैं, सॉरी, 4rh 2h स्क्वायर का 4h तो 4rh 4rh, we get 4r minus 6h, equation number 3 and equation number 4. For maximum और minima put dv upon dh equal to 0, यानी हम किसको 0 के इक्वल रख देंगे? 4rh माइनस 3h स्क्वायर को 0 के इक्वल रख देंगे. For maxima and minima, for maxima and minima put dv upon dh equal to 0. अब dv अपॉन dh को 0 के इक्वल रख रहे हैं अपन, यानी किसको 0 के इक्वल रखेंगे अपन? 4rh माइनस 3h स्क्वायर, 4rh माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपन h की वैल्यू निकालेंगे. तो 4rh इक्वल टू 3h स्क्वायर. नाउ कैंसिल, h और स्क्वायर कैंसिल, so value of h is 4r upon 3. अब now check sign, since d square v upon dh square at h equal to 4r upon 3. अब इसमें वैल्यू रखते हैं अपन 4r upon 3. एज के प्लेस पे रखेंगे अपन 4r अपॉन 3, तो क्या होगा? 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 4r माइनस 8r, यानी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी डी स्क्वायर वी अपॉन डी स्क्वायर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, इज इक्वल टू नेगेटिव. अब सिंस डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, सॉरी, since d square v upon dh square at h equal to 4r upon 3 is negative, therefore v is maximum at h equal to 4r upon 3. Therefore v is maximum at h equal to 4r upon 3. Hence proved. Next problem. A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the side of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 whole raised to the power 3 by 2. ABC is a triangle. AC is a hypotenuse and ABC is a right angle. I mean, question it is given, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the side of the triangle. मान लो एक पॉइंट जो आपका P है,
तो साइड से कितना डिस्टेंस पे, ए और बी डिस्टेंस पे गिवन है, मीन दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी. Show that the minimum length of the hypotenuse. So length of hypotenuse is equal to AC और AC किसके इक्वल है, AP प्लस BC. अब AP की वैल्यू फाइंड करनी है और वन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज गिवन है. अगर हमको एंगल मालूम है तो हम अदर साइड निकाल सकते हैं. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल PCB इज इक्वल टू थीटा. नाउ गिव नेम M and N. Therefore angle APN also theta by corresponding angle property. Corresponding angle property. अब since AC is equal to AP plus PC, AP plus PC. अब हमको AP की वैल्यू निकालनी है, तो AP की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमको, AP अपॉन स्मॉल ए मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इज इक्वल टू सेक थीटा. तो AP इक्वल टू A सेक थीटा प्लस, अब थीटा के साथ बन रहा CM के साथ, तो PC अपॉन B मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोसेक थीटा. So we get B cosec theta. Now solve this question for maxima or minima. So let us consider AC as a Z. Let AC equal to Z equal to A sec theta plus B cosec theta. Therefore dz upon d theta is equal to A constant and differential of sec theta into tan theta plus B and differential of cosec theta minus cosec theta into cot theta and d square z upon d theta square is equal to A constant. Now apply product rule, sec theta as it is and differential of tan theta sec square theta plus tan theta as it is, differential of sec theta into tan theta plus माइनस साइन कॉमन लेंगे हम, तो माइनस बी इन ब्रैकेट कोसेक थीटा एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ कोट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा एज इट इज and differentiation of cosec theta minus cosec theta into cot theta bracket close. Cot theta bracket close and this is point B. More simplify, कॉमन क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो A इंटू सेक स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा. अब नाउ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन, तो P plus B cosec square theta common, so we get cosec theta
plus cot theta is equal to positive. Why this quantity is positive? For every theta belong to 0 to 90 degree. Theta is an acute angle, or we know that in first quadrant all trigonometry ratio are positive and everywhere positive sign is there. So value of d square z upon d theta square also positive. अब now for maxima और minima put dz upon d theta equal to 0. इसको अपन 0 के इक्वल रखेंगे. a sec theta tan theta और माइनस b cosec theta cot theta. For maxima and minima. Put dz upon d theta is equal to 0. Next step, a sec theta into tan theta is equal to b cosec theta into cot theta. अब now convert into sin और cos. जो हम 10th से पढ़ता है कुछ समझ में नहीं आता आपको हमेशा sin और cos में चेंज करना है. तो 1 upon cos theta tan theta sin theta upon cos theta is equal to b 1 upon sin theta and cot theta cos theta upon sin theta. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. sin theta into sin theta into sin theta sin cube theta upon cos theta into cos theta into cos theta cos cube theta is equal to b upon a. Next step, tan cube theta is equal to b upon a. So tan theta is equal to b upon a raised to the power 1 by 3. b upon a raised to the power 1 by 3 means b raised to the power 1 by 3 upon a raised to the power 1 by 3 and theta equal to tan inverse b raised to the power 1 by 3 upon a raised to the power 1 by 3. अब now find sin of d square z upon d theta square. Since d square z upon d theta square at theta equal to tan inverse b raised to power 1 by 3 upon a raised to the power 1 by 3 which is positive, we already discussed. Therefore z is minimum at theta equal to tan inverse b raised to the power 1 by 3 upon a raised to the power 1 by 3. इन डेट केस हमको फाइंड क्या करना, मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है. देयरफॉर लेंथ z इक्वल टू क्या लिखा था हमने, लेट z इक्वल टू a sec थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 a sec थीटा प्लस b cosec थीटा. चेक कर लेते हैं बिगनिंग में जाके. z इक्वल टू a sec थीटा प्लस b cosec थीटा. अब अपन को सेक थीटा की और कोसेक थीटा की वैल्यूज निकालनी है. ओके, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. आपको दे रखा है टेन थीटा इक्वल टू b रेज टू द पावर 1 by 3 अपॉन a रेज टू द पावर 1 by 3.
मीन्स रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस. अब नाउ फाइंड हाइपोटेन्यूस. तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा? b रेज टू पावर 1/3 होल स्क्वायर प्लस a रेज टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर. So a raised to the power 2/3 plus b raised to the power 2/3. अब now substitute all the values. So a sec theta कितना होता है? Hypotenuse upon base. So a raised to the power 2/3 plus b raised to the power 2/3 upon a raised to the power 1/3 plus b into value of cosec theta. Root a raised to the power 2/3 plus b raised to the power 2/3 upon b raised to the power 1/3. Hypotenuse upon perpendicular. Now what is common? A raised to the power 2/3 plus b raised to the power 2/3 common. Square root in bracket a upon a raised to the power 1/3 means a raised to the power 2/3 plus b upon b raised to power 1/3 means b raised to the power 2/3. In last step we get a raised to the power 2/3 plus b raised to the power 2/3 and whole raised to the power 3/2. Hence proved. Next problem. Show that the semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. और ये जो है आपका सेमी वर्टिकल एंगल, विच एंगल? BAC is equal to alpha, semi-vertical angle, given surface area, let's length height L, altitude H and radius of base R. अब आपको प्रूव क्या करना है? अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 मीन्स साइन अल्फा इक्वल टू 1/3. अब डायग्राम से साइन अल्फा किसके इक्वल है? ए बी तो आपका हो गया बेस और बी सी हो गया आपका परपेंडिकुलर और ए सी इज हाइपोटेनस और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. यानी आपको आर और एल में रिलेशन निकालना है. So first write volume of cone V is equal to 1/3 pi r square h. Give equation number 1. We know two relation. One is r square plus h square equal to l square. Equation number 2. And other relation is given in the question. Given surface area. तो सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर. गिव इक्वेशन नंबर 3. अब नाउ एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3. हमको रिलेशन किसमें निकालना है? आर और एल में, यानी एच को एलिमिनेट करना है. तो फर्स्ट पाई आर स्क्वायर और इन प्लेस ऑफ एच हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2. 1/3 पाई आर स्क्वायर. अब आपको एल को एलिमिनेट करना है. अब टेल मी वैल्यू ऑफ एल क्या मिल गया यहाँ से? एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अब नाउ सिंप्लीफाई. 1/3 पाई आर स्क्वायर अब इसका स्क्वायर करते हैं तो साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं अपन. एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर इज टू दी पावर 4
माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और एलसीएम कितना आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई आर इज टू दी पावर 4। अब कैंसिल कर देते, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर आर इज टू दी पावर 4 कैंसिल, पाई इंटू पाई स्क्वायर, सॉरी ये पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर आर इज टू दी पावर 4 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब इन ब्रैकेट के अंदर क्या है देखो, रूट के अंदर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन, जो हमने पेज चेंज किया है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैलकुलेशन टफ होगी, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, so therefore v square is equal to 1/9 pi square r raised to the power 4, और ब्रैकेट में अपन लिखेंगे एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। लेट v square equal to z, therefore z equal to, अब कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर एंड यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, पाई स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर कैंसिल, so we get 1/9 z इक्वल टू 1/9, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर के अंदर इंटू कर दो तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेज टू दी पावर 4। अब सोल्व दिस क्वेश्चन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, therefore dz अपॉन dr इज इक्वल टू 1/9, यहाँ से मिलेगा आपको 2r एस स्क्वायर माइनस 4 आ गया जाएगा तो 4 2 जा 8, आर इज टू दी पावर 4 का डिफरेंशियल 4r क्यूब, सो 8s पाई आर क्यूब, एंड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 2s स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24 एस पाई आर स्क्वायर। फॉर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, put dz upon dr equal to 0, dz upon dr equal to 0। अब dz upon dr को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा 2 स्मॉल आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 8s पाई आर क्यूब, 1/9 तो क्या होगा 0 में डिवाइड कर देंगे हम। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एस स्क्वायर से एस कैंसिल हो जाएगा और आर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट आर स्क्वायर ओनली। सो नेक्स्ट स्टेप वी गेट एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन 1 हमने v को दी थी, आर स्क्वायर को 2 दी थी, और एस को हमने क्या दी थी इक्वेशन 3, गिवन वाली इक्वेशन है एस इक्वल टू पाई आर एल पाई आर स्क्वायर गिवन सरफेस।
Now give equation number 4. अब now check sign of d square z upon dr square it r equal to, तो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल देते हैं. r की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? स्क्वायर रूट एस अपॉन 4 पाई. अब आर स्क्वायर की जगह हम एस अपॉन 4 पाई रखेंगे, तो एस अपॉन 4 पाई, पाई और पाई कैंसिल, सो वी गेट नेगेटिव वैल्यू 2s स्क्वायर माइनस 12s स्क्वायर, तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है. नेक्स्ट है, सिंस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर is equal to negative, therefore z is maximum at r. अब z मैक्सिमम, z किसको लेट किया था हमने? एस स्क्वायर को, therefore सॉरी v स्क्वायर को, therefore v is maximum at r, सॉरी मैक्सिमम. और व्हेन v is मैक्सिमम, हमको प्रूव क्या करना है? सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स साइन इनवर्स 1/3. यानी हमको रिलेशन किस में निकालना? r और l में रिलेशन निकालना है. So therefore from equations equations 3 and 4, इक्वेशन 3 में क्या था? इक्वेशन ऑफ गिवन सरफेस एरिया. 3 में क्या था? इक्वेशन ऑफ गिवन सरफेस एरिया मीन्स एस इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सबको याद है. और क्या प्रूव किया था हमने इक्वेशन 4 में? एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. तो दोनों को अपन इक्वल कर देते हैं, बोथ वैल्यू इक्वल टू एस. अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप, पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर. पाई और पाई कैंसिल, आर एन स्क्वायर कैंसिल, तो आर अपॉन एल इक्वल टू क्या आएगा? 1/3. तो आर अपॉन एल इक्वल टू 1/3. अब आर अपॉन एल किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. डायग्राम में देखो आर अपॉन एल किसके इक्वल है? आर अपॉन एल, आर मीन्स बीसी और एल मीन्स एसी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स साइन अल्फा. So next step, 1/3 equal to sin alpha. Therefore alpha equal to sin inverse 1/3. Hence proved. In next lecture, we will discuss more problem based on maxima and minima. Thank you. Have a nice day.